Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This presentation is for BBA2. The subject which we are going to discuss here is Principle of Microeconomics, which is presented by Ms. Zahra. The topic which we are going to discuss in detail is demand. As we have already discussed that what is economics, why the economics emerges in our previous lectures, which I have delivered before. So here we will discuss about demand, that what is demand, what is the law of demand, what are the determinants of law of demand. First of all, we should know that what is market. Market is a place where number of buyers and sellers come together to buy and sell the goods. Market is what? Market is a place where number of buyers and sellers come together to buy and sell the goods. Now, demand. What is demand? Demand is a schedule or a curve that shows the various amount of product that the consumer are willing and able to purchase at each series of possible prices. What is demand? It is the purchasing power. It is the willingness. These both characteristics should be fulfilled. Means that if a person has the purchasing power but if he is not willing to buy that particular product, that is not known as demand. Or we can say that if the person do not have the purchasing power but he wants to buy that particular product, then that is also not known as demand. A demand is the one which a person is willing to buy and he has the purchasing power. For example, you want to buy a car. It means that you are willing to buy a car but you do not have the money, you do not have the purchasing power, so that is not a demand. Or we can say that you have the money, you have the purchasing power to buy the car, but you do not want to buy a car. Means you are not willing to buy the car. So again, one of the characteristics is not filled. If one of the characteristics is not filled, that would not be considered as demand. Demand will only be that in which these two characteristics will be fulfilled. Means that a person has the money to buy the car and he is also willing to buy the car, then that is known as demand. Moving forward, what is law of demand? Law of demand is other things remains constant, other things remain same, और Latin में इसको हम कहते हैं ceteris paribus. As price fall, quantity demanded rises. As price rises, quantity demanded falls. Means there is an inverse relationship between price and quantity demanded. अगर price बढ़ रही है तो लोग demand कम कर रहे हैं, and if the prices fall, then the people are demanding more. We can show it in a graph and in a table as well. टेबल में आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है पर बुशल कॉर्न की डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1 और क्वांटिटी डिमांडेड जो है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 10, 20, 30, 5, 55 एंड 80. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसी को आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं. याद रखिएगा कि प्राइस आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे लेनी है और क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस आपने हमेशा वाई एक्सिस पे लेनी है और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे. तो हमने प्राइस के अगेंस्ट जो है क्वांटिटी डिमांडेड का प्लॉट कर दिया है, जिससे हमें ये पॉइंट्स मिले हैं, ब्लैक डॉट्स मिले हैं. इन ब्लैक डॉट को ज्वाइन करके ये जो ग्रीन कर्व बना है दैट इज द डिमांड कर्व. Now, moving forward, we should know that why there is an inverse relationship between price and quantity demanded, or we can say that why the demand curve is downward sloping. So, there are 4 reasons. Number 1 is the income effect. Income effect means that the purchasing power, if the price of the product decreases, the purchasing power of a person increases. For example, आपके पास 10 रुपीज़ थे आप और 1 रुपये की टॉफ़ी थी, तो आप उस 1 रुपये की टॉफ़ी 10 रुपीज़ में 10 खरीद सकते थे. यू कैन बाय 10 टॉफ़ीज़. लेकिन अगर क्या हुआ है, प्राइस डिक्रीज़ हो गई, प्राइस 0.5 हो गई है, तब उन्हीं 10 रुपीज़ में आप 20 टॉफ़ीज़ खरीद सकते हो. 1 रुपये में 2 हो गए तो 10 रुपीज़ में 20 हो गए. सो प्राइस के कम होने से यू आर बाइंग मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट. देन प्राइस इफेक्ट. किसी चीज़ की अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो कि पहले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या हो गया, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो गए. क्यों? क्योंकि नाउ दे कैन अफोर्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दैट इज नोन एज प्राइस इफेक्ट. कि प्राइस के कम होने से नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई. देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे लोग, फ़ौरन ही दूसरी कमोडिटी की तरफ
शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, दूसरी कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो गए और उसकी डिमांड उन्होंने कम कर दी। तो प्राइस के इंक्रीज होने तो उसकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गया। अगेन नेगेटिव रिलेशनशिप। लास्टली हमारे पास क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि ये एक लॉ है जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक कंज्यूमर कोई चीज़ यूज़ करता रहता है कॉन्टीन्यूसली, अगर वो उसको यूज़ करता रहेगा तो हर न्यू यूनिट की जो यूटिलिटी है वो प्रीवियस यूनिट से कम होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बर्गर था, मैंने एक बर्गर खा लिया, उसके बाद मुझे अगर आप एक दूसरा बर्गर ऑफर करोगे और आप कहोगे कि ये उतने ही पैसों में लोगे, तो मैं कहूँगी नहीं। अगर आप मुझे थोड़ा प्राइस कम पे दोगे तो फिर मैं खरीदूंगी, नहीं तो मैंने नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि पहले तो उसको मैं खाना चाहती थी, मेरे लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा थी, तो मैंने जो उसने प्राइस मांगी मैंने उसको दे दी। अब क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बर्गर खा चुकी हूँ, तो अब उसके लिए मेरी यूटिलिटी कम है, अब मुझे उतनी डिज़ायर नहीं है उसको लेने की, उससे कम है। तो मैं, जब मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम है तो मैं उसको तब ज़्यादा तभी खरीदूंगी ना जब वो उसके प्राइस कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप पे जाते हो, वहाँ जाके एक सूट खरीदते हो, आपने एक सूट खरीद लिया, आप खुश हो गए। शॉपकीपर आपको कहता है बाजी एक और सूट ले लें। आई विल से अगर आप प्राइस कम करेंगे तो मैं एक और लूँगी। क्यों आप ये कहते हो? क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट यूनिट की यूटिलिटी आपके लिए कम होती है, इसलिए आप कहते हैं कि थोड़ी प्राइस कम करें तो फिर मैं लूँगी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज अनदर रीजन दैट व्हाई डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। Now, there is another concept, market demand. Market demand means जब आप individual demands को add up कर देते हो तो वो market demand बन जाती है। For example कि हमारे पास 3 लोग हैं, that is Joy, Jen and Jay। इन तीनों की डिमांड्स को जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। वी कैन शो दिस इन अ शेड्यूल। डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, मतलब प्राइस 5 पे जो है 10 डिमांड कर रहा है, जेन 12 डिमांड कर रहा है और जे 8 डिमांड कर रहा है, और इन तीनों की डिमांड को हम ऐड करते हैं तो उसी प्राइस से मार्केट डिमांड कितनी होगी, 30। सिमिलरली प्राइस जब 5 से 4 पे डिक्रीज होती है तो डिमांड सबकी इंक्रीज होगी है, जॉय की 10 to 20, जेन की 12 to 23 एंड जे की 8 to 17, और मार्केट डिमांड इनको सम अप करेंगे दैट इज 60। तो मार्केट डिमांड यहाँ क्या हो गई है, 30 to 60। इसी तरह ये हमारा चलता जाएगा। तो इसको जब हम एक प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो वी कैन सी इट इन अ ग्राफ ऑफ जॉय, जेन एंड जे, और आप देख सकते हो कि 35, 39 एंड 26 ये जो आपकी डिमांड है ये कंप्लीट अप करके कितना बन रही है, 100 बन रही है, दैट इज द मार्केट डिमांड। लास्टली वी विल डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। जो अभी हमने शुरू में कहा था अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स विच वी नीड टू मेक कांस्टेंट इन लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स ये सारे कांस्टेंट होंगे, अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारा लॉ डिमांड होल्ड नहीं करेगा, सो वी हैव टू मेक देम कांस्टेंट। Number 1 is the consumer taste. The consumer's taste should remain constant. For example, अगर आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा तो आप अगर किसी चीज़ की प्राइस कम नहीं भी होगी स्टिल आप उसको डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस कम हो रही है तो आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपका टेस्ट जो है वो डिमांड को चेंज कर सकता है, प्राइस चेंज हो ना हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर दोगे चाहे उसकी प्राइस चेंज ना हो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कंज्यूमर टेस्ट शुड रिमेन कांस्टेंट। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। प्राइस कम हो ना हो, आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ बायर्स जब इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हो, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हो। सो नंबर ऑफ बायर्स कैन ऑल्सो चेंज द डिमांड, सो इट शुड ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। देन कंज्यूमर इनकम, अगेन अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है उसी प्राइस पे आप ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने चले जाते हो, आपके पैसे आपको पॉकेट मनी ज़्यादा मिल गई। अगर आप एक समोसा खाते हैं तो अब आप उस दिन 2 समोसे खाओगे, 2 चॉकलेट्स खाओगे, ठीक है, यू कैन ईट मोर। प्राइस तो चेंज नहीं हुई बट आपकी इनकम चेंज हुई है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन चेंज द डिमांड, वी हैव टू मेक देम कांस्टेंट। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, इसी तरह अगर 2 चॉकलेट्स आप खाते हो, डेयरी मिल्क खाते हो, ग्लेक्सी खाते हो, दोनों की सपोज करो कि दोनों की प्राइसेस सेम होती हैं, तो अगर एक की प्राइस कम होती है तो आप दूसरे पे शिफ्ट कर जाओगे। सो द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड शुड ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर कंज्यूमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं अगर सपोज करेंगे फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइसेस जो हैं बढ़ जाएंगी, तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दोगे। प्राइस तो अभी कम नहीं हुई बट यू आर डिमांडिंग मोर। फॉर एग्जाम्पल, आजकल क्या है, कोरोना केसेस में लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर रहे हैं। प्राइसेस अभी
कम नहीं हुई हैं, प्राइसेस तो अभी वही हैं, बट स्टिल पीपल आर डिमांडिंग मोर। सो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी आप डिमांड ज़्यादा करते हो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं इनको हमें कांस्टेंट रखना होता है। दीज आर ऑल नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आपकी असाइनमेंट क्या, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे लॉ ऑफ डिमांड पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के देना है, जिसमें आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, शेड्यूल बनाना है, कर्व बनाना है इसका, और ये जो डिटर्मिनेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं इन सब डिटर्मिनेंट्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू।